टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में बताइए। ये क्वेश्चन सुना हुआ लग रहा है। जी हाँ, 3 इडियट्स मूवी में सुना था हमने। बट ये हमारे भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। हमारे रिलेटिव्स हमसे पूछते हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे स्कूल में, कॉलेज में या किसी नए पर्सन द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमें अपने बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन हमें किस सीक्वेंस में किस बात को रखनी है, कैसे बोलना है। समटाइम्स वी हेजिटेट, समटाइम्स वी हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यस, आई नो दैट। So, hey everyone, this is Prasan. You need to introduce yourself, but you are not. So, how to make a good impression? Don't worry, this video is packed with simple tips and tricks to help you craft a confident and engaging self introduction. Whether you are at a job interview, school, college, a party, or just meeting with new people, let's do this. You never get a second chance to make a first impression. This is said by Will Rogers sir. आप इंटरव्यू में हैं, कॉलेज में, किसी फंक्शन में या किसी नए पर्सन से जब मिलते हैं, अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा नहीं होता तो ऑब्वियसली यू नो दैट बाकी सारा टाइम और बाकी सारी बातें अच्छे से नहीं चल पाती हैं। सो वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपकी अच्छी शुरुआत है तो आपके सारे काम का आधा काम तो कंप्लीट ही हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन से। किस तरह से देना है, कैसे शुरू करना है, एंड दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर दैट दिस विल impress interviewers. This is your winning self introduction. So it will be used in interview, gathering, school, college, party. So I always start the videos with the key points. The very first key point, greeting, yes. Second is name. Third is belong, up, from. Fourth is personality, family, qualification, skills, experience, achievements, hobby, and then at the last you will say thank you. So let's begin with the first, that is greeting. So there are times of greeting. The very first time is morning. Yes. So when the morning start 5 a.m. and end 59 past 11 a.m. So what to say? If you are in interview, in college, or in party or somewhere, and the time is morning, then say good morning, sir, or ma'am, or everyone. At the time of afternoon, that is start from 12 p.m. and end 5 p.m. Say good afternoon, sir, ma'am, or everyone. The time is evening, that is start 5 p.m. and end 8 o'clock. Then say good evening, sir, ma'am, or everyone. जी हाँ, there are some words which you don't use. Don't say hi, hey, hello, what's up in the formal interview, because of these words are informal words. Generally, we use these words with the friends. The second key point is name. There are many ways of telling your name. The very first is generally just say my name is डैट डैट डैश। अपना नेम लिख दीजिए, यहाँ पर डैट डैश है, माई नेम इज प्रशांत। या फिर आप कह सकते हैं आई एम प्रशांत। बट कुछ लोग बोलते हैं माई सेल्फ प्रशांत, जो कि कंप्लीटली गलत है। डोंट से लाइक दिस, बिकॉज ऑफ दिस इज पजेसिव प्रोनाउन, सो वी डोंट यूज नाउन आफ्टर माई सेल्फ। नाउ स्टार्ट विद द थर्ड की पॉइंट, दैट इज एड्रेस. सो वी जनरली से दैट आई बिलोंग टू, जो भी आपका प्लेस होता है, लाइक आई बिलोंग टू प्रयागराज। इसको कहने का और भी तरीके हैं। आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम
Prayagraj. There you can see on screen itself is written. It is used for if you are from the same place. अगर आप इंटरव्यू में हैं या कॉलेज पे हैं या कोई पर्सन आपसे पूछ रहा है और आप उसी प्लेस में आपसे पूछ रहा है तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम प्रयागराज इटसेल्फ। बट आप उस सेम प्लेस से नहीं बिलोंग कर रहे हैं, आप कहीं और हैं, तो आप बोलिए आई एम फ्रॉम प्रयागराज बट करेंटली लिव इन फतेहपुर। ओके, नाउ come to the fourth point, that is personality. That is very, very important in your interview and also about your whole talk and whole session. So, how to say this? I am a dash person. In the dash place, we fill like some adjectives which are given: innovative, passionate, a goal oriented, a creative, and hardworking. So, if I have to use, I will say I am a passionate person. आप ऐसे बोल सकते हैं I am an innovative person. I have also given some more adjectives and also described about those adjectives. Like the very first, that is resilient, right? Third, adaptable, proactive, and creative. So use your words if you want to use. Otherwise, there are some following words are given. You can choose anyone according to your personality. Like there are 10 words, 10 adjectives are given. Now, the sixth point is that family. So, how will you say that? I have a nuclear family, a joint family. Like nuclear family जो छोटे परिवार होता है, जैसे आप वहाँ पर 4-5 मेंबर हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली इसमें चाचा चाची, दादा दादी, ग्रैंडफादर, अंकल आंटी, एवरीवन इज लिविंग टुगेदर। सो अगर आप न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली। अगर आप जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ जॉइंट फैमिली। आफ्टर दिस, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव वन सिबलिंग्स, टू सिबलिंग्स, थ्री सिबलिंग। सिबलिंग क्या है यहाँ पर? सिबलिंग मीन्स होता है ब्रदर एंड सिस्टर। आप इसको बोलने का और भी तरीका हो सकता है, जैसे आप बोल सकते हैं आई हैव वन एल्डर ब्रदर एंड वन सिस्टर। ओके, अगर आपके पास 2 भाई एंड 3 बहनें हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। इसी बात को आप सिबलिंग वर्ड को यूज करके बोल सकते हैं आई हैव 5 सिबलिंग्स। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वालिफिकेशन। सो इन दिस आप इसको इस तरह बोल सकते हैं, लाइक अगर आप किसी क्लास में हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन 5th स्टैंडर्ड। इसी बात को आपके बोलने के बाद और तरीके हैं, जैसे आई एम इन क्लास 7th। बट हाँ, डोंट यूज TH 7th, लाइक दिस इज रॉन्ग है। ओके, अगर आप क्लासेस में नहीं हैं, स्कूल लाइफ में नहीं हैं, आप कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं या कॉलेज में हैं, आप बोल सकते हैं आई एम परसीविंग BA फर्स्ट ईयर, आई एम परसीविंग O लेवल, आई एम परसीविंग डिप्लोमा ऑफ आर्ट्स, वॉट एवर यू आर डूइंग। नाउ आल्सो आप बोल सकते हैं आई एम इन BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, आई एम इन MA फर्स्ट ईयर, वॉट एवर। ओके, नाउ आप अगर अपने 10th एंड 12th कंप्लीट कर चुके हैं, आप उसके बोलने का ये फॉर्मेट यूज करिए आई पास्ड आर ग्रेजुएटेड। यस, अब आप कुछ लोग बोलेंगे सर ग्रेजुएटेड क्यों? ग्रेजुएटेड तो ग्रेजुएशन के लिए होता है। नो, ग्रेजुएटेड इज मोर फॉर्मल देन द पास्ट। जी हाँ, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम, जो भी आपका स्कूल का नेम है, विथ जितने परसेंट आपने क्लास 10th में स्कोर किए एंड दैट परसेंट इन माई 10th एंड 12th। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई हैड अ बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ
जो भी आप यूनिवर्सिटी आप कोलकाता यूनिवर्सिटी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड अ मास्टर डिग्री इन जो भी सब्जेक्ट का नेम है फ्रॉम यूनिवर्सिटी जो भी होगी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद देन कम टू द additional skills and experience. In addition to my primary qualification में कौन कौन सी थी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री ओके आई possesses a course a diploma or skill from that institute in जो भी आपका ईयर है उसको फिल कर दीजिए लाइक आपको बोलना है कि मैं ओ लेवल का एक एक्स्ट्रा कोर्स मैंने परचेस किया है तो आप बोल सकते हैं आई possesses ओ लेवल फ्रॉम जो भी आपका कॉलेज नेम है एंड इन ईयर मेंशन दैट द ईयर आल्सो now come to the experience in experience if you are fresher without hesitating just tell that I am a fresher then mention that if you have the experience so mention also I have 5 year experience या 2 year experience in जिस भी वर्क पे आपका एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल पे और टीचिंग ड्राइंग आर्ट्स डांसिंग whatever all right now come on the achievements इन अचीवमेंट्स आपने होल लाइफ में टिल नाउ अब जब इंटरव्यू में है या किसी ने आपसे पूछा है उस समय तक आपने जितने भी अचीवमेंट्स किए अपने लाइफ में आप उनको मेंशन कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस मेथड लाइक आई हैव अचीव्ड जो भी आपका अचीवमेंट है मेंशन दैट अगर एक से ज़्यादा है तो ऑल्सो एंड जो दूसरा है इसी बात को बोलने का एक और भी वे है लेट्स डू दिस लाइक माई कम्पिटेटिव अचीवमेंट्स इंक्लूड जितने भी आपके पास मेडल्स हैं एंड अवार्ड्स भी जो हैं उनको मेंशन करते हुए फ्रॉम जिस ओलंपियाड या कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था उसको मेंशन कर दीजिए लाइक माई अचीवमेंट्स इंक्लूड 7 मेडल्स एंड 10 अवार्ड्स फ्रॉम साइंस ओलंपियाड आर्ट्स ओलंपियाड मैथ ओलंपियाड इंग्लिश ओलंपियाड आर competitive competitions also like physics practical competitions road safety essay writing competition whatever okay जो भी आपके हैं आप उनको मेंशन कर सकते हैं at the 9th point you can mention your hobbies are like my hobbies are जो भी आपकी डेली रूटीन में जो हॉबीज होती हैं हॉबीज क्या होते हैं जो आप रेगुलरली करते हैं ठीक है जैसे रीडिंग बुक्स डांसिंग ड्राइंग कुकिंग जिसे करने में आपका इंटरेस्ट आता है इसी को आप दूसरे मेथड से भी बोल सकते हैं आई लव प्लेइंग क्रिकेट बैडमिंटन टीचिंग ट्रैवलिंग जो भी है मेंशन दैट बाय फॉलोइंग दिस फॉर्मेट आर आपको दोनों चीज़ों को मेंशन करना है साथ में ठीक है तो आप ऐसे बोल सकते हैं माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग न्यूज़पेपर and at the last say that's all about me thank you but you are studying with me so I have something special for you instead of that's all about me you can say thank you for your time and consideration जी हाँ this is polite closing okay आप जितना ही पोलाइट क्लोज करेंगे वैसा ही इंप्रेशन सामने वाले पर्सन के सामने आएगा आपका ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन एंड आप इसको अपने फॉर्मेट में लिखिए जो भी मैंने आपको फॉर्मेट दिया है इसको आप अपनी डिटेल्स को फिल करिए एंड कमेंट सेक्शन में इसको टाइप करके कमेंट करिए थैंक यू जय हिंद सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो